सुकृता पॉल कुमार जी, लीलाधर जगोड़ी जी, प्रोफेसर एच शिव प्रकाश जी, श्री सिरपी बालसुब्रमण्यम जी, डॉक्टर वोलेट भारत देशमुख गारू, जनाब अब्दुल्ला हाज साज, रेस्पेक्टेड प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, प्रेसिडेंट साहित्य अकादमी, श्रीमती पद्मा सचदेव जी, एमिनेंट डोगरी पोइट, डॉक्टर सुकृता पॉल कुमार, Dr. Leeladhar Jagudi, Professor H. Shiv Prakash, Dr. Sirpi Balasubramaniam, Dr. Voleti Parvatisham. The next two sessions chairpersons, Sri Har Prasad Das ji and Dr. Timsulao, all the eminent poets who are here to participate in this poetry festival, and honorable friends of Sahitya Academy, my colleagues in the Academy. I am glad to welcome all of you for this poetry festival being held as part of Rashtriya Sanskrit Mahotsav being organized by the Ministry of Culture, Government of India. Today's event is in continuation of a number of poetry meets that Sahitya Academy organizes at local, regional, national and international levels to promote poetry in all the 24 recognized languages of India. This is in addition to a number of poetry books that we publish every year. If one looks closely, India has always been a land of poetry. Of course, over centuries, other genres developed, but poetry has been a dominant partner in the house of literature. As communities evolved and the more refined became the civilization, armed with imagination and images, men and women of India created soulful and highly nuanced verses. By the time Bhakti movement came along, the songs reached their crescendo, and what we see in the annals of history is nothing but sublimation of the heart and self, and more importantly, poets had courage to make the divine descent to this world of mortality from heavens of immortality with their immortal poems. Poetry has not only been useful in prodding imagination and enabling human beings to express themselves more freely. Poetry has also been a tool of social critique at various times in India. The very same Bhakti movements I just referred aroused the songs of saint poets to enhance awareness of the social evils, and poetry was the central catalyst in their attempts at social re-engineering at various times. The soulful poems with powerful imageries and highly sensitive lyrical intensities have mellowed people, ignited movements and moved the nations in the path of progression. Academy organizes these meets to bring together finest of minds, as we are going to witness today, enable the poets, scholars, laymen to learn the crafts and nuances of other traditions. This enhanced awareness leads to an increased understanding of the other, and that increased understanding leads to acceptance, peace and harmony. These meets are also Academy's attempts to preserve, promote and popularize poetry, and at the present time, when the general interest in poetry seems to be on the wane, we feel it is our duty to organize and host more and more poetry meets and festivals across the country and in all the 24 recognized languages. Friends, I take this opportunity in welcoming the chief guest of this morning, Srimati Padma Sachdev ji, an eminent Dogri and Hindi writer and translator who has kindly agreed to inaugurate this festival, and she acquired herself a prominent place among the frontline Dogri poets. Padma ji has a number of publications, including translations to her credit in Hindi and Dogri, and she is the recipient of various prestigious awards and honors, including Padma Shri from the Government of India, Sahitya Academy Award, Sahitya Academy Translation Prize, J&K Academy of Art, Culture and Languages Award, Soviet Land Nehru Award, Hindi Academy Award, Delhi Hindi Academy Award, Kabir Samman, Anuvad Parishad Award, and many more. Welcome to Srimati Padma Sachdev. I also heartily welcome our President Professor Vishwanath Prasad Tiwari ji,
a distinguished Indian poet and writer in Hindi. He has nearly 50 books to his credit. He has been editing Dastavez, a quarterly magazine being published from Gorakhpur, Uttar Pradesh since 1978, and he is the recipient of many awards including Gaurav Samman, Vyas Samman from Birla Foundation and many other awards. Welcome to Professor Tiwari ji. I sincerely welcome the poet participants in the inaugural session, the chairpersons of next two sessions, Sri Harprasad Das ji and Professor Timslaw, all the poets who are going to present their poems, poetry lovers, my colleagues from the academy, and of course every one of you. Thank you all. Now I request Padma ji to give an inaugural address and also present some of her poems. माननीय अध्यक्ष महोदय, राव साहब और दोस्तों, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के अवसर पर साहित्य अकादमी की ओर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। साहित्य अकादमी से जुड़े मुझे लगभग 40-45 वर्ष हो गए हैं। यहाँ आकर उन सब मित्रों से मिलना और बातचीत करना हो जाता है जिन्हें हम अक्सर लफ्ज़ों के जरिए मिलते हैं। उन्हें पुस्तकों के माध्यम से जानना और व्यक्तिगत तौर से जानना दो अलग बातें हैं। मैं 1984 में मुंबई से दिल्ली आई थी। मुंबई छोड़कर आने का एक बहुत बड़ा खला कमी जो थी वो दिल्ली ने नहीं, साहित्य अकादमी ने पूरी की। इसलिए ये मुझे अपना घर जैसी लगती है। यहाँ के सदस्यों से लेखकों को जो सम्मान और अपनापन मिलता है, वही पाने के लिए हम यहाँ आते हैं। लेखक को तो हम लफ्ज़ों के माध्यम से मिल सकते हैं, पर मनुष्य को मिलना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और वो यही होता है साहित्य अकादमी में। बहुत साल पहले दिनकर जी ने कहा था, कविता का युग समाप्त हो गया है। उनके चेहरे पर चिंता और दुख दोनों के भाव थे, और मुझे ये दुख हुआ। मैंने मन में सोचा, खुद तो बुढ़ऊ कविताएं पढ़कर दाद बटोर कर ऊपर चले जाएंगे और हमारे लिए ये कह गए हैं कि कविता का युग समाप्त हो गया है। लेकिन कविता का युग समाप्त होने की कगार पर है, इसे हम नकार नहीं सकते। आज कविता की पुस्तकें भी बहुत कम प्रकाशक छापना चाहते हैं। कविता है तो भाग भाग हो जाता है, पर कविता कभी मर नहीं सकती, क्योंकि ये ऋग्वेद और लोकगीतों की बेटी है, और लोकगीत तो पूरे भारत में हवा की तरह फैले हुए हैं। मुट्ठी भर लोगों को इनके बारे में भले ही पता ना हो, पर पूरी देह पूरी आत्मा भारत की इन्हें जानती है। सबसे पहले लोरी ही से तो शुरू होता है गाना, और बचपन की वो लोरियां मनुष्य को कभी नहीं भूलती। साहित्य अकादमी के इस अद्भुत काव्य पाठ के कार्यक्रम में भारत की विभिन्न भाषाओं के कवियों द्वारा कविता पाठ से यही प्रमाणित हुआ है कि कविता हमेशा रहेगी। और कुछ एक संस्थाएं हमारे भारत में, कुछ मित्र लोग हमारे भारत में कवियों के अलावा भी हैं जो कविता को जिंदा रख रही हैं। इसलिए कविता कभी मर नहीं सकती। कविता लोकगीतों से ही शुरू हुई है। मुझे डोगरी का एक लोकगीत याद आता है, चिट्टिए ते बैर के सिपाही साढ़े रोंदे, कच्चिए ते बैर के सिपाही साढ़े रोंदे, पक्किए ते रोंदे अहदेदार, सिपाहिया नामा कटाई करा। कच्ची बैरकों में हमारे सिपाही रहते हैं और पक्की इमारतों में ओहदेदार रहते हैं। ये असमानता देखते हुए मेरे सिपाही तुम घर वापस लौट आओ, क्योंकि पत्नियों को हमेशा ये रहता था कि घर कब आओगे। ये बहुत लंबी वापस आने की एक प्रथा और कसक है जो मन में हमेशा, जिनके पति बाहर चले जाते हैं, आजकल तो पत्नियां साथ ही जाती हैं, ये उन दिनों की बातें थी जब पति बाहर रहते थे, फौज में रहते थे या कहीं भी, तो तब मतलब है स्त्रियां इस तरह की गुहार करती थी। साहित्य अकादमी ने इस अद्भुत काव्य पाठ के कार्यक्रम में भारत की विभिन्न भाषाओं के कवियों द्वारा कविता पाठ से यही प्रमाणित किया है कि कविता हमेशा रहेगी। हम विश्व की कविता की दुनिया में सबसे अनोखे हैं। हमारे पास इतनी भाषाएं हैं, उतने ही लोकगीत हैं
और उतनी भिन्नता से उतने ही आपस में जुड़े भी हुए हैं। मैं इसका स्वागत करती हूँ। आप सब लोग अपने ही हैं, मित्र हैं और तकरीबन सब मुझसे छोटे हैं। मुझे इस बात पर बड़ा गर्व है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। कोई ज़माना होता था जब डोगरी में कविता पाठ करती थी तो मैं सबसे छोटी लड़की होती थी, क्योंकि मैं 15 बरस की थी जब मेरी पहली कविता राजा का महल से मैं जानी गई और 1955 में मैंने पहली बार मंच पर कविता पढ़ी थी। मैं एक और बात हम सब लोग अपने बैठे हुए हैं करना चाहती हूँ। साहित्य अकादमी साहित्यकारों का अपना घर है। देश में दुखदायी घटनाओं से दुखित होकर इस परिवार के बहुत से प्रिय और मानवीय सदस्यों ने अपने सम्मान लौटाकर जैसे ये घर छोड़ देने का निर्णय कर लिया, उससे हम सब लोग बड़े व्यथित हैं। दुख से, क्रोध से या आवेश में किन्हीं भी कारणों से व्यक्ति यदि अपना घर छोड़ दे तो वो घर सुनना भी हो जाता है और उस सदस्य की प्रतीक्षा भी करता रहता है। आज के अवसर में भी अपना दायित्व समझती हूँ कि अपने प्रिय सदस्यों को बताऊं, उनकी मनोहार करूं कि दुख, नाराजगी या आवेश के कारण आपकी अनुपस्थिति हम सबके लिए बड़ी दुखदाई है। कृपया अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। जो सम्मान आपको बहुत स्नेह, बहुत आदर के साथ दिए गए हैं, इनका सम्मान करते हुए इन्हें वापस लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि इन कवियों में डोगरी की कविता को पढ़ नहीं रहा है, तो मैं डोगरी में एक मुक्तक सुनाकर अपने कार्यक्रम में डोगरी को भी इस कार्यक्रम में शामिल करती हूँ। दिन निकलिया जहाँ समाधि जोगिया ने खोली है, सन्य कीर्ति आई जा लंघी गई कोई डोली है, कोल कोई कुकी है जाकर न्याना हसिया, जा बोलदा लंघी गया कोई डोगरे दी बोली है। इसका अर्थ है, दिन निकला या योगी ने समाधि खोली है, शाम गिरती आई या कोई डोली गली में से निकल गई, कोई कोयल कुहकी या कोई बच्चा हंसा या कोई गली में से डोगरी भाषा बोलता हुआ चला गया। मैं एक छोटा सा गीत पढ़ देती हूँ। जाड़े के दिन आए चिट्ठी भेजना माए, डोगरी में यूँ है, डोगरी में ही लिखा है। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी डोगरी भाषा में जब भी मैं कविता पढ़ती हूँ तो 1 करोड़ लोग समझते होंगे, लेकिन जब मैं इसका हिंदी में अनुवाद करती हूँ तो पूरा भारतवर्ष समझता है। ये हिंदी की ताकत है, ये हिंदी की शक्ति है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके एक आध चीज़ डोगरी में सुनाकर एक कविता की शुरू की लाइनें फिर उसको हिंदी में तर्जुमा करूँ। तो ये यूँ है, ठंडू दे दिन आए चिट्ठी भेजिया माए। ये मैं थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहती हूँ। ठंडू दे दिन आए, ठंडू दे दिन आए, चिट्ठियाँ भेजिया माए, चिट्ठियाँ भेजिया माए, माए अम्मा तीक मेरी आंदर होई जा, निग्गी मेरी रोआ नहीं रोआए, रोआ नहीं रोआए, चिट्ठियाँ भेजिया माए, ठंडू दे दिन आए, ठंडू दे दिन आए, चिट्ठियाँ भेजिया माए। अब मैं इसका अनुवाद पढ़ूंगी। छोटा बीरन जब परनाए, छोटा बीरन जब परनाए, मुझे निमंत्रण पहले आए, मुझे निमंत्रण पहले आए, कैसे है माँ जाए, कैसे है माँ जाए,
चिट्ठियाँ भेजना माए, जाड़े के दिन आए, जाड़े के दिन आए, चिट्ठियाँ भेजना माए। अब मैं इस अखिल भारतीय काव्योत्सव का उद्घाटन करती हूँ। धन्यवाद। अब मैं साहित्य अकादमी के अध्यक्ष को निमंत्रण करता हूँ कि वो अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी। आदरणीय पद्मा जी, लीला खजूरी जी, सुकृता परमार जी, सिरपी जी, पार्थिसम जी, अब्दुल अहद साज जी, एच एस शिव प्रकाश जी, हरप्रसाद दास जी, तमसुलाओ जी और इस सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, अभी पद्मा जी ने दिनकर जी को उद्धृत करते हुए ये कहा कि कविता का युग खत्म हो रहा है, और उन्होंने यह आशा भी व्यक्त की कि कविता कभी मरेगी नहीं। आजकल जो टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ अट्टहास है, उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कविता अप्रासंगिक हो रही है, या कविता मुरझाने लगी है, या कविता मरने लगी है, या कविता के पाठक बहुत कम हो गए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम लोग मंच पर, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे असेंबली हो, चाहे साहित्य अकादमी का मंच हो, चाहे कोई मंच हो, गद्य में बोलते बोलते अचानक कुछ शेर उद्धृत करते हैं, कुछ काव्य पंक्तियां उद्धृत करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी बात गद्य में पूरी नहीं होती है कि हम वहां कविता कोट करते हैं? और उन्हीं स्थानों पर कविता उद्धृत करते हैं जहां अपने को कमजोर महसूस करने लगते हैं। आप गौर करिएगा, जब हमारी बात पूरी नहीं होती तब हम वहां किसी पुराने कवि की कुछ पंक्तियों को ले आते हैं, उसको अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए, अधिक कंप्लीट बनाने के लिए। हमको लगता है कि ये कविता जो है वो किसी रचनाकार का कमाया हुआ सत्य होता है। वो जीवन के अनुभवों की बहुत गहराई से वो कुछ शब्द उठाता है, उन शब्दों को चार्ज करता है, उन शब्दों में नया अर्थ भरता है, और अनेक भाव भंगिमाओं के द्वारा वो जो कुछ कह जाता है उसे भी गद्य में कहना मुश्किल हो जाता है। जब हम मान लीजिए हम प्रेम पर भाषण दे रहे हैं, इश्क पर, और इश्क क्या होता है, कितनी कठिनाइयां होती हैं, और इश्क में कैसे कैसे राजनों और रहबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो जब हमसे कुछ नहीं कहते बनता है तब हम कहते हैं कि इश्क क्या है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब आप देखिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, इसमें जो कह दिया गया है उसे हम अपनी पूरी तकरीर में, पूरे लेक्चर में नहीं कह पाते।
जब कभी हम बहुत परेशानी में होते हैं, बड़ी छटपटाहट में, चारों ओर से हमारे ऊपर महाभारत के तीर बरस रहे होते हैं, तो हमको टेंशन याद आते हैं। माई कैंडल बर्न्स एट बोथ एंड्स, मेरी जीवन बाती दोनों छोरों पर जल रही है। या कभी हम किसी को देखते हैं कि वो बहुत ही प्रतिभावान आदमी है, या अत्यंत सुंदरी स्त्री है, रानी की तरह से उसका सौंदर्य है, लेकिन वो झाड़ू लगा रही है, तो हम कहते हैं, हमको ग्रे की एलजी याद आती है, फुल मेनी ए फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। तब हम वहां पहुंच जाते हैं। आखिर ये कविता की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, तो क्या है? कविता को हम कह सकते हैं कि कविता मर रही है, कविता के पाठक नहीं, लेकिन कविता में कितनी ताकत है ये हर आदमी महसूस करता है जो सेंसिटिव है, जो संवेदनशील है। और आप देखते हैं कि जब पार्लियामेंट में हमारे लीडर्स शायरी कोट करते हैं, तो वो बहादुर शाह जफर को, मिर्जा गालिब को, तो जरूर ये सोचा जाता है कि भाई कविता की जरूरत है हमको अपने को व्यक्त करने के लिए, अपने को एक्सप्रेस करने के लिए फोर्स के साथ, आवेग के साथ, ताकत के साथ कविता हमारे लिए एक जरूरी चीज है। ये जिसको हमने अभी कहा पूर्ण अभिव्यक्ति, फिनिश्ड पीस, आर्ट का एक फिनिश्ड पीस है कविता, पूर्ण अभिव्यक्ति। और इस तरह की पूर्ण अभिव्यक्तियां दूसरे उसमें दिक्कत बहुत कठिन हो जाता है। मैं किसी उसकी किसी विधा की कमी की ओर इशारा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि संस्कृत में तो गद्य को और कविता को एक ही बताया गया है। संस्कृत में गद्य और कविता सब एक है। बाणभट्ट की पूरा गद्य पोइट्री है, काव्य है, या सब कुछ काव्य में कहा गया है, तो हम किसी उसकी कमी नहीं महसूस कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जो पोइट्री में जो व्यक्त किया जाता है, जो आता है, उसकी कुछ एक अलग विशेषता होती है। मैं हो सकता है उस विशेषता की ओर न आपका ध्यान आकृष्ट कर पाऊं। अब देखिए, विज्ञापन के शब्दों में मैंने एक आध बार उदाहरण दिए हैं। विज्ञापन के शब्दों में और उसमें क्या अंतर होता है? विज्ञापन में आता है उजले धुले डेट से, उजला शब्द का इस्तेमाल इसमें है। लेकिन जब महादेवी वर्मा इसी शब्द का इस्तेमाल करती हैं तो चार्ज करती हैं, सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पड़ा। ये शब्द वही है उजला, लेकिन उन्होंने आंसू उजला कर दिया। ये जो पोएट का प्रयोग होता है, ये जो उसकी दीप्ति होती है, चमक होती है, वो और इतना ही नहीं है, ये जैसे छेनी हथौड़ी लेकर कोई कलाकार पत्थरों से मूर्ति निकालता है, कोई शिल्प निकालता है, ऐसे ही अपने समाज में फैली हुई भाषा के जंजाल से पोएट एक पोएट्री का पीस निकालता है, और इसलिए वो भाषा से युद्ध करता है, भाषा से लड़ता है। मैं आपको एक अपना उदाहरण इस समय बहुत प्रासंगिक तो नहीं होता है अपना उदाहरण देना, लेकिन खैर अब यहाँ ऐसी जरूरत पड़ गई है। माँ के मरने पर उसकी डेड बॉडी जल रही थी,
मेरी, और उसके पैर जल गए थे, सिर जल गया था, मगर उसका जो वक्षस्थल है वो जल नहीं रहा था। मैं जब इस पर कविता लिख रहा था बहुत दिनों के बाद और काफी दिनों पहले, तो उसमें स्तन शब्द आता है कविता में, लेकिन ये शब्द मेरे दिमाग में बैठता नहीं था। लिख दिया मैंने, वो कविता छप भी गई, मगर मुझे बार बार लगता है कि ये स्तन शब्द खटक रहा है माँ के वक्षस्थलों के लिए। मुझे कालिदास याद आए। कालिदास ने एक बार एक जगह माँ पार्वती के स्तनों की चर्चा की। जब वो सिंह देवदारू के पास पहुंचता है और देवदारू की रक्षा कर रहा है वो जो सिंह है, और राजा दलीप जाते हैं नंदिनी गाय के पीछे पीछे, तो वो कहता है सिंह कि ये जो देवदारू है इसे माता पार्वती ने अपने स्तनों के सोने के घट रूपी स्तनों के दूध से पाला है, और तुमने इसको नुकसान पहुंचाया। तो उस समय उन्होंने पार्वती के स्तनों की चर्चा सोने के घट से की। तो मेरे सामने कालिदास थे, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये शब्द ठीक नहीं। लगभग 6 महीने 8 महीने बाद एक दिन सोते हुए, क्योंकि जो इच्छाएं हम जागते हुए नहीं पूरा कर पाते हैं वो सोते हुए पूरा हो जाती है सपने में, मनोवैज्ञानिकों का ऐसा कहना है। तो सोते हुए वो शब्द आ गया मेरे पास, पयोधर, और मैंने लिखा जल नहीं रहे थे मां के अमृत पयोधर। इस तरह से शब्द के साथ एक पोएट इस तरह लड़ता है। अगर उसे लड़ते लड़ते थक जाता है तो सोते हुए भी वो लड़ता रहता है, तभी तो वो शब्द आता है। इसीलिए जो आजकल हम लोग अलंकार छंद वगैरह की बड़ी लानत मलामत करते हैं, बहुत गाली देते हैं, कहते हैं अलंकार ये वो तमाम, हमारी पीढ़ी के कवि। लेकिन भाषा से लड़ने के लिए ही इन हथियारों का आविष्कार हुआ था, अलंकार का। जब कह नहीं पा रहे हैं कैसे कहें, तो एक अलंकार पकड़ लिया। जब हम मुख का, किसी स्त्री के मुख का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं तो अलंकारों में जाते हैं, छंद की व्यवस्था करते हैं, अन्यथाकरण करते हैं, डिस्टॉर्शन, और जिसको हम कहते हैं सेड ऑफ द अनसेड की बात करते हैं, और कोशिश करते हैं कि कम से कम शब्दों में। पोइट्री की एक बहुत खास विशेषता है कि जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कह जाए, और जो शब्दों में न कह सके तो खाली जगहों में कहा जाए, द सेड ऑफ द अनसेड। ये पोइट्री की बहुत बड़ी विशेषता मानी गई है। और वो मीर का एक है ना, देखो तो किस रवानी से कहते हैं शेर मीर, दुर्ते 1000 चंद हैं उनके सुखन में आप। दुर मोती से 1000 गुना उनके कहने में चमक है। ये जो चीज होती है ना, ये जो पोएट होता है वो आंख नहीं देखता है, आंख का देखना भी नहीं देखता है। आंख के देखने की जो बंकिम गति है उसको देखता है। तो आप बिहारी को देखिए, अनियारे दीर्घ दृगनो कि 3 तरुण समान, वह चितवनी और कछु जे बसोत सुजान। वो आंखों का वर्णन नहीं कर रहा है, वो उस तरुणी के देखने की भंगिमा का वर्णन कर रहा है। ये सब जो पोइट्री में आता है, पोइट्री को नया बना देता है।
फिनिश, पूर्ण बना देता है, उसको समर्थ बना देता है। ये सब विशेषताएं, इनके लिए हम पोइट्री को याद करते रहते हैं। इसलिए यह कहना कि पोइट्री मर रही है, मर गई, ये कभी संभव नहीं। हमारे आचार्य शुक्ल जो और एक बात और है कविता में, वैसे तो सारे साहित्य में और रचना में होता है, लेकिन एक बात और है कि ये कविता जो है उसकी एक पंक्ति कभी मनुष्य को खड़ा होने की शक्ति दे देती है, लड़खड़ाते हुए आदमी को बल दे देती है। अगर वो सेंसिटिव है तो आत्महत्या करने से रुक जाता है। ये जो एक थका हारा आदमी, जिसने कभी निराला को पढ़ा होगा, थका हारा विद्यार्थी, तो उसको जब लड़खड़ाने लगता है तो उसको याद आती है वह एक और मन रहा राम का जो न थका, राम की शक्ति पूजा याद आ जाती है और उसको बल मिल जाता है। ये हमारे जितने पोइट्स हैं, कबीर, सूर, तुलसी, इनको जो भक्ति पोइट्स हैं, जो ज्यादा पढ़े गए हैं, उन्होंने कितने लोगों को मरने से बचाया है, आत्महत्या से बचाया है, इसके आंकड़े नहीं होंगे हमारे पास। आजकल हमारे लेखकों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर संशय पैदा होता है, पाबंदियां हैं अभिव्यक्ति पर। मेरे ख्याल से किसी भी रचनाकार पर, खास तौर से पोएट पर, कभी कोई पाबंदी नहीं है। कविता लिखने में किसी कवि ने आज तक कोई पाबंदी महसूस नहीं की। आप लिखने में क्या पाबंदी, छपने में पाबंदी हो सकती है, लेकिन जो चीज लिखी गई है वो सामने भी आती है। आप देखिए, किस दिल्ली राजधानी नहीं थी, फतेहपुर सीकरी राजधानी थी। और कुंभन दास, ये मैं नए कवियों की नहीं, पुराने कवियों की बात कर रहा हूं। कुंभन दास ने लिख दिया, संतन कहा सीकरी सो काम, संतों का सीकरी से क्या काम है, और उस जमाने में लिख दिया फतेहपुर सीकरी को लेकर। सूरदास शुद्ध कवि थे, जिसको प्योर पोएट कहा जाता है, जिसको शुद्ध कविता कहा जाता है, सूरदास थी। उन्होंने कविता के अलावा और कुछ नहीं लिखा। लेकिन उस समय मथुरा राजधानी थी। आज दिल्ली थी, कुछ दिन पहले फतेहपुर सीकरी थी, उसके पहले मथुरा थी राजधानी कृष्ण की। और क्या लिखते हैं सूरदास, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवे ते कारे। वह मथुरा काजल की कोठरी है, जो वहां से आता है काला आता है। आप सोचिए किस तरह चैलेंज कर रहे हैं मथुरा को, फतेहपुर सीकरी को। तुलसीदास से बड़ा कोई भक्त कवि नहीं होगा, लेकिन तुलसीदास ने पॉलिटिक्स के बारे में जितना लिखा है, शायद ही किसी सेंट और भक्त कवि ने लिखा हो। रामचरितमानस जैसी पुस्तक, जो राम की कथा है, राम की कथा में कलि वर्णन की क्या जरूरत है? राम की कथा खत्म हो गई। उत्तरकांड में वो कहते हैं कलि वर्णन, कलयुग का वर्णन कर रहे हैं। वो कलयुग का वर्णन नहीं है, उनके समय का वर्णन है। दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज टाइम। बहुत से इतिहासकारों ने लिखा है। अकबर के दरबार में 2 इतिहासकार थे, अबुल फजल और अब्दुल कादिर बदायूनी। उन्होंने अकबरनामा लिखा, उन्होंने दोनों ने, और उन्होंने मुंतखबुत तवारीख लिखा बदायूनी ने। उसमें वो अपने समय का वैसा चित्रण नहीं होगा जैसा तुलसीदास के कलि वर्णन में। आप एक बार उस कलि वर्णन को पढ़िए। तो ये जो पोइट्री है, उसमें पोएट पाबंदियों का पालन कभी नहीं उसने किया
और उसके सामने कोई पाबंदी नहीं होती, जिसको कहते हैं अभिव्यक्ति की पाबंदी। क्या पाबंदी है आप लिखिए। छपने में पाबंदी हो सकती है, मैं समझता हूं कि कविता को हमारे आचार्य शुक्ल ने बहुत अच्छी बात की है। हिंदी के बहुत बड़े क्रिटिक हैं। उन्होंने कहा है कि एक कविता जो है वो भाव योग की साधना है। मनुष्य तमाम व्यापारों में लिप्त होकर, तमाम कामों में इतना अपने जंजाल फैला लेता है कि उसकी मनुष्यता खोने लगती है, मनुष्यता गायब होने लगती है। उसके भीतर मनुष्यता को बचाए रखने का काम पोइट्री करती है, कविता करती है। यह जो काम है, यह जो दायित्व है, यह दूसरा कोई पूरा नहीं कर सकता। इसलिए चाहे कितना भी मशीनी दैत्याकार समय हो, लेकिन उस समय में भी कविता तो जिंदा रहेगी ही, कविता की जरूरत भी महसूस होगी। मैं समझता हूं कि साहित्य अकादमी अगर इस तरह के आयोजन कर रही है, इस तरह के जरूरत की, तो वो उस जरूरत को महसूस करके ही कर रही है। उस समय लंका में जब दानवों का बड़ा राज्य था और केवल लंका में दानव थे, तो विभीषण ने क्या कहा था? सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जस दसनन मह जीव बिचारी। मैं वैसे ही रह रहा हूं लंका में जैसे दानवों के, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। क्या पोइट्री है ये! अब इसमें आप पोइट्री भी देखिए और उसकी जरूरत भी देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। I request the poets to present their poems, at least one in their language, one poem, and 2 or 3 short poems in translation. First I will call upon Professor H.S. Shivaprakash. He has to leave to the airport, I think.